تیرا سے شہریوں کے انخلا کا ملبہ وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت یہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں، ذمہ داریوں سے دامن چھڑا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے وفاقی حکومت نے اعلان کیا کہ تیرا سے لوگوں کے انخلا پر ان کی پاک فوج کی جانب سے کوئی احکامات انہیں نہیں دیے گئے۔ یہ نوٹیفیکیشن صوبے نے نکالا ہے اور وہی اس کا ذمہ دار ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے اس بیان کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آفریدی قوم کا جرگہ بلانے کا اعلان کیا اور کہا کہ اگر وفاق کا موقف غلط ہوا تو پھر وہ خود متاثرین کو تیرا چھوڑنے جائیں گے۔ آج پھر وہ فائنلی جرگہ ہو گیا، لیکن اسٹیٹ سے وہ اعلان نہیں ہوا جس کا انتظار تھا لوگوں کو۔ سہیل آفریدی نے لوگوں کی اپنے گھروں کو واپسی کے بجائے اسلام آباد لے جانے کا اعلان کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب تک اسلام آباد نہیں آتے متاثرین اپنے گھروں کو بھی واپس نہیں جائیں گے۔ لوگوں کی مشکلات گھر واپس جانے سے کم ہوں گی یا پھر اسلام آباد آنے سے؟ اور متاثرین کو بھی پھر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیا؟ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں معزز مہمانوں میں اختیار ولی خان صاحب جو کہ کوارڈینیٹرزم کے ساتھ موجود ہیں، شفیع جان صاحب معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا پروگرام میں جوائن کریں گے۔ آپ دونوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں، اور ساتھ ساتھ حاجی شیری آفریدی صاحب جو کہ رہنما ہیں باڑا سیاسی اتحاد کے، وہ بھی مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ تینوں کی شکر گزار ہوں۔ شفیع جان صاحب ذرا آپ سے بات کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں شفیع جان صاحب سے بات کروں، اختیار صاحب آپ اس ساری سچویشن کو سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ جرگے میں موجود افراد نے اپنی مرضی سے نقل مکانی نہیں کی ہے، انہوں نے نفی کی ہے وہاں پر جو موجود تھے۔ جب سہیل آفریدی صاحب نے ان سے پوچھا کیا جرگے میں جو موجود افراد ہیں وہ متاثرین تیرا ہی ہیں اور آپ اس جرگے کے فیصلے کو درست سمجھتے ہیں؟ اختیار صاحب جی السلام علیکم۔ میں کرن ریکویسٹ کروں گا if you could repeat your question please۔ سر میں آپ سے پوچھ یہ رہی ہوں کہ صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ جرگے میں موجود افراد، جب ان سے پوچھا سہیل آفریدی صاحب نے کہ آپ کو نقل مکانیاں آپ نے خود کی ہے یا کروائی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ زبردستی نقل مکانی کروائی گئی ہے، ایسا بتا رہے ہیں وہ۔ تو جرگے میں جو موجود افراد ہیں، ایک تو یہ بتائیے کہ وہ تیرا کے متاثرین ہی ہیں، دوسرا آپ اس جرگے کے فیصلے کو درست سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کرن، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا کہ میں اپنا موقف پیش کر سکوں۔ انفیکٹ بات ایسی ہے کہ جرگہ متاثرین کا جو یہ آج کا جلسہ تھا، جلسہ ہوتا ہے اور جرگہ ہوتا ہے۔ جرگہ وہ ہوتا ہے جو کل ہوا تھا، اس میں لوگوں نے اپنا موقف دے دیا۔ آج تو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا اور جلسے میں تو وہی لوگ لائے گئے جو ان کی جماعت کے لوگ تھے، جو ان کی اپنے ہم خیال لوگ تھے یا ان کے نظریے کے لوگ تھے۔ ان کے ساتھ انہوں نے بات کی تو انہوں نے تو یہی کہنا تھا جو ان کو سوٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فرض کریں کہ لوگوں کو جبری نقل مکانی کرائی گئی ہے، تو میرے بھائی میرے دوست جو بیٹھے ہیں اپنے شفیع جان صاحب، تو میں ان کا ایک چھوٹا سا کلپ سر کچھ دیر میں ساتھ موجود ہوں گے۔ میں نے ان کا ایک کلپ آپ کے ٹیم کو بھیج دیا ہے، ان کو کہیے کہ وہ پلے کرے، وہ پشتو میں ہے، جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نقل مکانی ہو رہی ہے یہ رضاکارانہ طور پر ہو رہی ہے اور جبری طور پر نہیں ہو رہی ہے۔ تو اگر شفیع جان صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں سر، آپ بحیثیت وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر یہ بات کر رہے ہیں، یقیناً آپ اطلاعات کی بنیاد پر کر رہے ہوں گے یا آپ تجزیہ تو نہیں دے رہے ہوں گے نا اپنا؟ جو آپ نے کہا کہ وہاں پر جو موجود لوگ تھے وہ جلسے میں آئے ہوئے لوگ تھے، وہ متاثرین نہیں تھے۔ دیکھیں کرن، جو جرگہ ہوتا ہے جرگے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جرگے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جرگے میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر آپ کو بھی بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے، مجھے بھی بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ میں بھی بات کروں گا، آپ بھی کریں گی، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، میں بھی سوال کروں گا، مجھے بھی جواب ملے گا، آپ کو بھی جواب ملے گا۔ لیکن جس طرح آج ان کی مجلس تھی، یہ تو ایسا ہی تھا جیسے کوئی جمعے کا خطبہ دے رہا ہو، ایک بندہ کہہ رہا ہو، پڑھ رہا اور باقی لوگ جو ہے اس کو سن رہے ہیں۔ تو یہ جرگہ نہیں ہے۔ پشتون روایات کا جو جرگہ ہوتا ہے اس میں دو طرفہ تبادلہ خیال ہوتا ہے، سوال اٹھتے ہیں، سوال کا جواب ہوتا ہے۔ جرگہ وہ تھا جو کل ہوا تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا۔ آپ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جرگے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے یا جو فارمیٹ ہوتا ہے، میں نے بھی جا کے کور کیا ہے، دیکھا بھی ہے، وہ مختلف ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں اور وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پر لوگ موجود تھے وہ متاثرین تیرا نہیں تھے، وہ کارکنان تھے، جلسے میں آئے ہوئے لوگ تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
वो पीटीआई के कारकुन थे, और वो जलसा जिस तरह फ्लॉप हुआ है वो एक अलग कहानी है कि उसमें लोगों ने वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, सुहेल आफरीदी की हुकूमत के खिलाफ लोगों में इंतहाई गम और गुस्सा पाया जाता है। ये आपको मैंने एक क्लिप भेज दिया है, आप अपने प्रोड्यूसर से वो ले लें, वो अपने प्रोग्राम में चलाएं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान 17 तारीख को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं ये वॉलंटरली जा रहे हैं। सर वो मैं पहले वैसे वो मैं पहले चला चुकी हूँ, वो मैं पहले चला भी चुकी हूँ, सुनवा भी चुकी हूँ, और मैं सवाल भी उठा चुकी हूँ इस पर के अलग अलग मौक़िफ़ क्यों है इस पर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर इजाजत दीजिए, आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। जी ठीक। सर आफरीदी साहब, मुझे ये फरमाइए, कल आप लोगों ने भी एक जरगा किया जिसका तस्करा खुद इख्तियार साहब भी अभी कर रहे हैं। मुतासरीन तीरा की रजिस्ट्रेशन के अमल में सियासी मुदाखलत, अक़रबा परवरी और करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए गए। तो सर क्या करप्शन और क्या मुदाखलत हो रही है, और ये जो बात से की गई है क्या इसके सबूत भी मौजूद हैं? शुक्रिया किरण साहिबा, आपने प्रोग्राम में मदद किया और मुझे अपने तीरा मुतासरीन का मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। देखिए, हम इस बुनियाद पर हमने अपने इस एलामिये में इस पॉइंट को शामिल किया कि जो वहाँ पर जो सेंटर खोले गए हैं, पहले तो हमारा डिमांड था कि इसको तीरा में ही ये सेंटर बनाए जाएं। जो लोग वहाँ पर जो नुमाइंदा जरगा है तीरा का, वो वहाँ पर एक एक घर को एक एक बंदे को जानते हैं, वहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन होती और वहाँ पर ही उसको रकम ट्रांसफ़र नकद मिल जाती। लेकिन वो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वो पॉइंट नीचे ले आए मुख्तलिफ़ जगहों पे, और इसमें अपने सियासी कारकुनान को बैठाया। हम ये इस बुनियाद पे कह रहे हैं, और हम इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर सियासी कारकुनान एक इंतज़ामी मसला एक जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने करना था, वहाँ पर अपने हर गेट पे हर जगह पे सियासी लोगों को बैठाना जिसको वो फोकल पर्सन अपने आप को जाहिर करते हैं। तो उन्होंने वो किया, और वो सैकड़ों की तादाद में वो पर्ची जो है वो बांध दी गई, और सैकड़ों की तादाद में उन्होंने उसमें अपनी मर्जी के और अपने जो उसके अपने लोग थे उन्होंने ये किया है। और ये वहाँ चले, आप जो बात कर रहे हैं कि अपनी मर्जी के लोगों को फैसिलिटेट किया गया है, शफी जान साहब साथ मौजूद हैं, वो इन तमाम बातों का उनसे जवाब हम लेंगे। शफी जान साहब, आपके ज्वाइन करने से पहले बात हो रही थी, इख्तियार वली खान साहब भी आपके एक क्लिप की ही बात कर रहे थे, वो मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में चलाया था, जिसमें आप मुतासरीन की नकल मकानी को और वो जो जा रहे थे रजाकाराना कह रहे थे, लेकिन अब आपका मौक़िफ़ कुछ और है। तो आप उस वक्त सही कह रहे थे या आप अभी सही बात कर रहे हैं शफी साहब? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जिस क्लिप की बात आप कर रही हैं, और मैंने तो इख्तियार साहब की बात नहीं सुनी, अगर उन्होंने भी उस क्लिप का जिक्र किया है तो मैंने ट्वीट किया है तकरीबन आज से कोई 10-15 दिन पहले। वो 2 महीने से पुराना क्लिप है, 2 महीने तकरीबन उसको हो गए हैं। उस टाइम कोई ऑपरेशन नहीं स्टार्ट हुआ था, और वो 2 महीने पुराना क्लिप है, वो आप चेक भी कर सकते हैं उसकी डेट्स, वो मैंने ट्वीट भी किया हुआ है। उस वक्त नकल मकानी हो रही थी? उस टाइम जो नकल मकानी हो रही थी, उस टाइम ऑपरेशन की बाज़गश जरूर थी, लेकिन उस टाइम जो नकल मकानी हो रही थी वो लोग वॉलंटियरली कर रहे थे। ठीक, उस वक्त वाली नकल मकानी जो हो रही थी वो रजाकाराना हो रही थी, लेकिन आप लोग यानी इस बात से ये साबित हुआ ना कि नकल मकानी होती है आमतौर पर, तो आप लोग तो लेकिन अब इस बात से भी इनकार किया ना कि लोग घरों से नीचे उतर रहे हैं। पहली बात किरण साहिबा, आपने शायद फॉलो नहीं किया होगा इस पूरे ऑपरेशन को। हमने कब इनकार किया कि नकल मकानी वॉलंटियरली नहीं होती? जो लोग नकल मकानी वॉलंटियरली करते हैं उनके 2 घर होते हैं, एक ऊपर घर होता है, जब मौसम सख्त होता है तो वो नीचे आ जाते हैं, और जिन लोगों के 2 घर हैं वो अपने घर का साजो सामान के साथ नकल मकानी नहीं करते। ये जो अब नकल मकानी हो रही है साजो सामान के साथ हो रही है, चारपाइयों के साथ हो रही है, जानवरों के साथ हो रही है। जिनका घर नीचे होता है वो घर को ताला लगाते हैं। लेकिन शफी साहब, अब तो क्योंकि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना सर, अब तो आप लोग रजिस्टर कर रहे हैं लोगों को, तो अब आपको तो इल्म में होगा कि कितने लोग हैं जो वॉलंटरली उतर रहे हैं और कितने लोग हैं जिनको जबरदस्ती निकाला जा रहा है। जबरदस्ती जिनको निकाला गया है वो 17,000 फैमिलीज हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, 5 फैसिलिटेशन सेंटर्स उनके लिए बनाए गए हैं। 17,000 फैमिलीज की रजिस्ट्रेशन हो रही है, 15,000 तक हो चुकी है और 2,000 अभी रहते हैं।
जो रजाकाराना गए वो कितने नंबर्स बताए आपने? नहीं, रजाकाराना का नंबर तो मेरे पास नहीं है, वो तो वॉलंटियरली आते हैं। जिनको जबरी इनखला के तौर पर घर छोड़ना पड़ा है उनकी 17,000 फैमिलीज हैं, जिनमें 15,000 फैमिलीज की तकरीबन रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और 5 फैसिलिटेशन सेंटर उनके लिए कायम किए गए थे। ठीक, अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जब वो मुतासिरीन को वापस तीरा छोड़ने की बात कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि जिरगा करेंगे, बात करेंगे उनसे और फिर उसके बाद वापस तीरा लेके जाएंगे, लेकिन आज कहानी बिल्कुल चेंज हो गई। अब बाकायदा वो इस्लामाबाद आने की बात कर रहे हैं, आप क्यों साथ ही मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ मेरे नाज़रीन के लिए भी जरा सुन लें वजीर आला ने क्या कहा है, फिर उसके बाद बताइएगा कि जब तक इस्लामाबाद नहीं होकर आ जाएंगे ये बेचारे मुतासिरीन, तब तक क्या अपने घरों को नहीं जाएंगे? शफी साहब क्या करेंगे जब तक इस्लामाबाद नहीं आएंगे, फिर तब तक घर नहीं जाएंगे लोग? किरण साहिबा, आज आपने देखा होगा कि जिस नंबर में लोग आए थे और जिस नंबर में लोगों ने यह फैसला सुनाया कि उनको जबरी इनखला की सूरत में ही निकाला गया था, वो तो साबित हो गया है। और इसके साथ साथ जिस इस्लामाबाद की बात आप कर रहे हैं, तो आज आपने ये भी देखा होगा कि लोग डी चौक के नारे लगा रहे थे कि हमने डी चौक जाना है, लेकिन वजीर आला साहब ने कहा कि हम पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जाएंगे। अब वजीर आला साहब कुरम जा रहे हैं, औरकजई जा रहे हैं, शुमाली वजीरिस्तान जा रहे हैं, जहाँ पे ऑपरेशन हुए और वहाँ पे मुतासिरीन वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे मुलाकातें करेंगे। शफीजान साहब, आप कह रहे हैं साबित हो गया, तो सर साबित तो ये जब होता है ना, जो एक जरगे का फॉर्मेट होता है, जिस तरह से लोग बैठते हैं, उनको बात करने का मौका मिलता है, वो कम्युनिकेशन करते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जलसे की तरह का ये मंजर था, उस पर इख्तियार वली खान साहब को ये सवाल उठाने तक का मौका मिल गया कि जो लोग वहां पर मौजूद थे वो मुतासिरीन नहीं थे, वो तो आपके कारकुन थे सर। कोई कारकुन नहीं था, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई परचम था, ये तिरा के ही लोग थे जो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं। मलक भी बैठे हुए थे, आपने बुजुर्ग शख्सियत भी देखी होंगी जो फ्रंट पे बैठी हुई थी, और आपने देखा जब वज़ीर आला साहब ने पूछा तो सबने हाथ उठाए, हाथ तो किसी ने जबरदस्ती नहीं उठाया। अब हमने मजीद जरगे करने हैं। आप मुझे 1 मिनट देगा किरण साहिबा। वैसे हाथ तो आपने भी उठाया शफी साहब, लेकिन आप तो मुतासिरीन में शामिल नहीं है ना, हाँ तो आपने भी उठाया था। अच्छा, मुझे ये बताइए वजीर आला, आप तमाम कबायली जी सवाल ले लें, सवाल के साथ ही ऐड कर लीजिए। आप मुझे बात ही नहीं करने दे रही। नहीं, सवाल के सही, मुझे पहले पिछले सवाल का जवाब देने दें। आप देखें, अब हमने शुमाली वजीरिस्तान जाना है, अब हमने कुरम जाना है, औरकजई जाना है, वहां पे हमने जरगे कराने हैं। इन तमाम लोगों के जरगे की सूरत में उनकी जो राय होगी वो भी शामिल की जाएगी। फिर हमने इकट्ठा एक पख्तून कौमी जरगा बुलाना है और उसमें फैसला होना है, हमने इस्लामाबाद आना है या जहां भी जाना है, तो लोग फैसला करेंगे। और इस तमाम जिरगों की जो सरपरस्ती है वो वज़ीर आला साहब खुद करेंगे। तमाम उन लोगों की जो जिनका जहां पे ऑपरेशन हो चुके हैं और जहां पे मुतासरीन इस वक्त खुले आसमान के नीचे फेडरल हुकूमत छोड़ की जा चुकी है, ये हमारे लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है। इन सब के पास हम जाएंगे और हम कलेक्टिवली एक डिसीजन करेंगे। और ये जो सारी आप सिचुएशन बता रहे हैं, इसमें तो काफी वक्त लग जाएगा। आगे 10-15 दिन के बाद रमजानुल मुबारक हैं, तो मुतासरीन फिर तब तक क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है शफी साहब। और उसके साथ साथ फिर कल वजीर आजम के पास भी जाएंगे वजीर आला, तो कल की मुलाकात का एजेंडा क्या है? देखिए, पहली बात है कि जहां तक डिस्प्लेसमेंट लोग जो यहाँ पे बैठे हैं और आगे रमजान आ रहा है, हमने तकरीबन पूरी तैयारी की हुई है, किसी चीज की कमी नहीं हम छोड़ेंगे इन लोगों को। दूसरी बात, जहां तक वजीर आजम की मुलाकात का सवाल है, तो कल वजीर आजम साहब ने वजीर आला साहब को बुलाया हुआ है और वजीर आला साहब जाएंगे, अपने सूबे के हुकूक की बात करेंगे, हमारे जो वाजिबुल अदा पैसे हैं उस पे बात होगी, सूबे की सिक्योरिटी सिचुएशन पे बात होगी और तमाम चीजों को बड़े मुतल्लक तरीके से वजीर आजम के सामने पेश किया जाएगा।